Hello, good morning, class 8th students. How are you all? I hope all are safe. I am speaking your class teacher from Om Sai Vidya Academy. You can do your study only at home. So online classes have been started for you by Om Sai Vidya Academy. So let's start reading. So I will read Social Science Class 8 Chapter 1. द एडवेंट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश सत्ता का साम्राज्य. After the invasion of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. The vast resources of India had been a source of attraction to many clans and invaders. The Shaks, the Huns, and the Mongol invasion are some examples. Some of these invaders either returned after their defeat or became a part of this country by intermingling in the socio-cultural life. The Mughals established a mighty empire in the north of India. During the Mughal rules, many conflicts arose between Mughals, Rajput, Mughal Sikh, and the Mughal Maratha. यानी कि सिकंदर के आक्रमण के साथ ही भारत में निरंतर जो है धीरे किसी न किसी के साथ संघर्ष चलता ही रहा है. यानी भारत का जो इतिहास है वो संघर्षपूर्ण इतिहास है. तो यहाँ की जो विशाल संपदा थी, जो ये भारत की जो विशाल संपदा से काफ़ी लोग जो है अट्रैक्टिव थे. जैसे कि उनमें से कुछ उदाहरण थे शक हैं, हून हैं, मंगोल हैं आदि. तो कुछ सम ऑफ दिस जो इन्वेडर्स, कुछ इन्वेडर्स ऐसे थे जो पराजित होकर, यानी जैसे कुछ आक्रमणकारी थे जो बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने भारत की संस्कृति और भी अथवा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए. तो मुग़ल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुग़ल राज्य की स्थापना हुई. उसके बाद कई मुग़ल राजपूत युद्ध हुए, मुग़ल राजपूत, मुग़ल सिख एंड मुग़ल मराठास. After the establishment of Mughal power, many European powers came to India. The prominent among them were the Portuguese, the Dutch, the British, and the French. Conflicts arose among them for trade and afterwards for capture political power. Ultimately, the British emerged successful in establishing their power after signing pacts with the Indian ruler and established supremacy over them. The people of India struggled against the British to achieve independence. The people of India actively took part in the freedom movements that ultimately achieved independence in the year 1947. In the coming chapters, we will study about the glorious struggle for Indian independence. यानी मुग़लों के पश्चात यूरोप की शक्तियाँ भारत आईं, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच इनमें प्रमुख थे. तो व्यापार के पश्चात इन्होंने व्यापार करने के उससे है और व्यापार के पश्चात अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें संघर्ष चलता रहा. और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर जो अंग्रेज़ों की सत्ता थी वह स्थापित थी और जो देसी रियासतें थीं से संधियाँ कर ली इन्होंने और अपनी सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया. भारत की जो देसी रियासतें थीं उनको अधीन कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज शासनकाल में सभी ने मिलकर संघर्ष किया. इस संघर्ष में भारत की जनता ने भी भाग लिया और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई. तो भारतीयों द्वारा किस प्रकार के संघर्ष किए गए इसका अध्ययन हम करेंगे. द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, यानी कि जब यूरोपीय ट्रेडिंग्स जो कंपनियां थीं वो भारत आईं, भारत में उनका आगमन हुआ. सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन द 15th century. तुर्क कैप्चरिंग Constantinople, Renaissance revolution in the field of science and industries and geographical discoveries and fascination in the eyes of Europeans towards India and Far East.
The traders were forced to look for market for the increase in production due to Industrial Revolution. Vasco da Gama and Bartholomew Dias took up the task of discovery water route to Far East. Columbus discovered America in 1492. Bartholomew discovered Good Hope in 1487 and Vasco da Gama reached Calicut in the west coast in India in 1498. King Jamorin welcomed him. यानी 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसे प्रमुख घटनाएं हुई, मेजर हैपनिंग्स। तुर्क कैप्चरिंग, यानी जो कुछ तो दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति और भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व के जो देश होते थे यूरोपीय लोगों को एक नया आकर्षण दिया। यूरोप में हुई व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति ने वहाँ को एक नया मार्केट तलाशने में विवश कर दिया। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज भी पूर्व के लिए जो नवीन मार्गों की जो खोज थी उसका बीड़ा जो है वास्को डा गामा जैसे और कोलंबस जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। कोलंबस 1490 में अमेरिका, बार्थोलोमियो डाइस 1487 एशिया में आशा अंतरिक्ष तथा वास्को डा गामा 1498 में भारत के समुद्री तट जो है कालीकट पहुंचा। वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे जैमोरिन ने उनका वेलकम किया। पोर्चुगीज़ इन इंडिया, यानी भारत में पुर्तगाल। Vasco da Gama arrival in 1490 in India opened the door for the other European traders. The emperor and the king in India welcomed the European traders for various reasons. Portuguese were the first to land in India for trade. A new era of trade and business developed between two countries after Vasco da Gama arrival in India. Pedro Alvarez Cabral with fleet of 13 ships reached India in 1500. The Portuguese trader established trading center of Calicut, Goa, Daman, Diu and Hooghly. To establish supremacy on the trade of spices and black pepper, they first built a fort of Cochin in 1503. Francisco de Almeida was appointed the first Portuguese viceroy by Portugal in India 1505. With the help of Portuguese forces took Diu under his control. The Portuguese viceroy Albuquerque snatched Goa from Yusuf Adil Shah, ruler of Vijaypur, in 1509, and thus Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette Basin, Mumbai, Hooghly, St. Thomas. In this way, Portuguese traders 1515s had not only the sole control over Indian trade, but they also started ruling over the coastal after annexing it. 1498 में वास्को डा गामा के भारत आने पर यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया। यूरोपीय जो थे व्यापारियों का भारत के राजाओं ने भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया। यानी यूरोप के व्यापारियों जो थे उनका भारत के राजाओं ने काफ़ी भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। वास्को डा गामा के भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य व्यापार में एक नए युग का आरंभ भी हुआ। 1500 में 13 जहाज़ों की बेड़े के साथ जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो थे वो भारत पहुँचे और पुर्तगाली जो व्यापारी थे भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों पर अपनी कोठियाँ उन्होंने स्थापित कर ली। काली मिर्च, मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने 1503 में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की और 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस द अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा। 1509 में पुर्तगाली सेना ने जो यूसुफ पोर्चुगीज स्लोली ऑक्युपाइड थ्रोन ऑन दमन सॉल्सेट बेसिन, यानी जो पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस को, जैसे पुर्तगाल की सरकार ने द अल्मेडा को यानी भारत भेजा, पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा, उसने
पुर्तगाल की सेना जो थी बल पर एक द्वीप पर अधिकार कर लिए। तो 1509 में पुर्तगाली वायसराय जो अल्बुकुर्क था उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सॉल्सेट बेसिन, मुंबई, हुगली, टॉम पर भी अपने अधिकार कर लिए। और 1515 में जो पुर्तगाली भारत के साथ न केवल व्यापार पर अपना अधिकार जमा चुके थे वरन उन्होंने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर भी अपना प्रशासन करना आरंभ कर दिया था। तो डच इन इंडिया, भारत में डचों का आगमन। द डच वर रेजिडेंट ऑफ हॉलैंड। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी formed in 1602 in Holland for trading with India. In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese, in which the Portuguese were defeated. Soon after, Dutch established trading houses in the Coromandel coast, Gujarat, Bengal, Bihar, and Odisha. The first factory came up at Machilipatnam. The Dutch traded chiefly in spices, indigo, raw silk, lead, rice, and opium. The Dutch main factory was in Puligat, where they minted gold coin pagoda. Dutch introduced gold coins as currency in India, known as pagoda. The entry of British East India Company proved to be a fatal blow to the Dutch company in India. English and Dutch fought a battle of Bedra in 1759, in which Dutch were defeated and lost their forces, and their trade received a major setback. Slowly, the influence of the Dutch East India Company came to an end to India. यानी डच हॉलैंड के निवासी थे और भारत के व्यापार करने के लिए हॉलैंड में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच व पुर्तगालियों के जो बीच मध्य संघर्ष था वो निरंतर चलता रहा और पुर्तगाली जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और जो डच थे उन्होंने शीघ्र ही गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें अपनी कोठियाँ बना ली और उनका जो पहला कारखाना था वो मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों जैसे कि स्पाइसेस, इंडिगो, लीड और राइस एंड ओपियम, मसालों जैसे कि नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल, अफीम का व्यापार किया। और डचों की जो प्रमुख फैक्ट्री थी वह पुलीगट में थी जहां वह स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से जो डच कंपनी के जो व्यापार को धक्का लगा। 1759 में अंग्रेज तथा डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच पराजित हुए और अपनी शक्ति और उनके व्यापार को धक्का लगा। धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन होने लगा, यानी धीरे धीरे वह ख़त्म होने लगी। द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन। Like other European nations, the Britishers were also keen to have trade relation with India. The leading capitalists in Britain formed the East India Company on the 31st December 1600. Queen Elizabeth I of England issued a chapter providing 15 years monopoly in trading. The first British ship captained by Hawkins reached India in 1600 during the rule of Mughal Emperor जहांगीर। यानी कि अन्य यूरोपीय जातियों की भांति अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक थे, वो भारत में व्यापार करना चाहते थे। इंग्लैंड के जो प्रमुख पूंजीपति थे वो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो प्रथम अंग्रेजी जहाज जो बेड़ा था वो मुग़ल सम्राट जहांगीर का शासन था। यानी 1608 में जो फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया, यानी जो कैप्टन हॉकिंस थे नेतृत्व में जो प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा जो था वो भारत आया, उस समय जो शासन था वह जहांगीर का शासन था, जहांगीर का शासनकाल था।
भारत में फ्रांसीसियों का द फ्रेंच इन इंडिया, फ्रांसीसियों का आगमन। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। अ फ्रेंच डेलीगेशन अंडर द फ्रांसिस कैरन set out for India in 1667 and they established their first French trading center at Surat 1668. Therefore, after the French set up trading center of Machilipatnam 1669 and Pondicherry 1673 and Chandranagar in Bengal between 1692, the French company built for Louis Pondicherry for war defense. They focused only on making profit for trading in India. French governor Dupleix took decisive steps. Dupleix's efforts to strengthen French hold in India started rivalry with British East India Company and the French had to suffer defeat in the war and ultimately they started packing up from India। यानी 1664 में जब फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए द ओरिएंटल नामक एक कंपनी आई तो 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में सूरत का प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। 1669 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पांडिचेरी में और एवं 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनियों ने अपनी कोठियाँ स्थापित की। Decline of Mughal Empire and consolidation of British power in India। यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन और अंग्रेज़ों द्वारा इसका लाभ उठाना। द मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाबर इन 1526। इट गेन्ड स्टेबिलिटी अर्न फेम एंड बिकेम पावरफुल व्हाइल द एफर्ट्स ऑफ अकबर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। The successor were worldwide to acquire the throne of Mughal Empire. The claimants of throne took help the chief ten of the empire. Consequently, Mughal emperor had to concede to the demands of chieftains and amirs. The later Mughal emperor were simply puppets ruler in the hand. They could not check the decline of the empire। यानी जिस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों और प्रतिष्ठा से एक स्थायित्व प्रदान किया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी उसका पतन होने लगा। यानी धीरे धीरे वो जो काल था मुग़लों का वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मुग़ल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों में आपस में कई संघर्ष चलते रहे। गद्दी के दावेदार साम्राज्य के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। परिणामस्वरूप मुग़ल शासकों को अपने समर्थक सरदारों और अमीरों को गलत बातों को भी मानना पड़ता था। तो परवर्ती जो मुग़ल शासक एक प्रकार से कठपुतली शासक बनकर रह गए थे। वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सके। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य था वो ख़त्म होने लगा, उन पर अंग्रेज़ों का अधिकार होने लगा और ना चाहते हुए भी उन्हें उन लोगों की बात को मानना पड़ता था। आज हम पेज नंबर 3 तक ही रीडिंग करेंगे और we will continue this chapter next video।